मैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर वापस से हमें दो सम करने हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कॉस्ट प्राइस, पहला साल कॉस्ट प्राइस पे होता है, फिर उसके बाद बुक वैल्यू पे आ जाता है। मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000, मतलब यहाँ पे तो डायरेक्टली बैलेंस बता दिया 1/4/2014 पे हमारा बैलेंस है 60,000 रुपीज। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 10% आरबीएम मेथड के बारे में बोला हुआ है। दिस मशीन वाज सोल्ड एट 25% लॉस ऑन 1/10/2014, सोल्ड ऑन 1/10/2014 बना एट 25% लॉस। आपको इसका हिसाब किताब करना है, सिंपल सी बात है। हम लोग 1/4/2014 से चालू कर रहे हैं, 31/3/2015 पे एंड कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास तो वो 110 को ही चला जाता है। 110 मतलब यहाँ पे, मतलब हम लोग पूरा साल तो यूज नहीं कर पा रहे, कुछ 6 महीना ही यूज कर पा रहे। हमारा था 60,000 का, अगर मैं डेप्री निकालू तो 60,000 का 10% जो होता है ना वो 6,000 होता है। पर ये तो पूरे साल का है, 12 महीने का 6,000 रुपए, तो 6 महीने का कितना 3,000। ये 6 महीना कैसे आया उसका भी गिनती कर लेते हैं। 1/4 को हमने लिया हुआ था, 1/10 को बेच दिया, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवां, 9वां महीना। क्लियर है? 10वां महीना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पहली तारीख है। तो 3,000 रुपए डेप्री आ गया, 6,000 में से 3,000 चले गए 57,000 में से 25% तो लॉस निकालना है। 14,250 माइनस करो, 42,750। ओके, ये बैंक में आएगा, ये पीएनएल में जाएगा। क्लियर है? क्या थी वारो एट को तो तारो बाकी जन। हाँ चलो, कई डेट थी चालू करशो बाय बैंक आवशे कि नहीं आवे पहली वस्तु डेट कई 1/4/14। હવે આમાં શું હતું 1/4/14 ને થોડુંક યાદ કરો, ખરીદ્યું હતું કે પહેલેથી હતું? જો 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 અહીંયાથી ક્વેશ્ચનમાં જો તને મળી જશે આન્સર। ખરીદ્યું હતું કે પહેલેથી હતું? પહેલેથી હતું, તો આપણે શું લખવાનું? બેંક આવશે નહીં, ખરીદો તો કેશ પણ નહીં આવે, બેલેન્સ આવશે। ક્લિયર है? બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 60,000 રૂપીસ। સારું, એની બાજુમાં કઈ ડેટ? 1/10/14। વેરી ગુડ ડેપ્રી 3,000। ઓકે, પછી બેલેન્સ તો આવશે જ નહીં, વેચી કાઢ્યું હતું। સોલ્ડ કર્યું હતું, સોલ્ડ કર્યું તો શું આવે? સેલમાં કઈ જગ્યાએ લખવાનું? શું લખવું? સેલ્સ લખતા જ નથી। પીએનએલ શેમાં લખીએ? પ્રોફિટ થતો કે લોસ? લોસ થતો। લોસ કઈ સાઈડ લખું? આ સાઈડ ઉપર, તો બાય પીએનએલ કેટલા લોસ થયો? 1/4/250। હવે હવે એક જ વસ્તુ બાકી છે, ના બેલેન્સ આવે જ નહીં, મેં કઈ લખેલું છે? શું લખ્યું છે? બેંક પણ કેમ ત્યાં આવશે? હા, પણ ઈ સાઈડ કેમ આવશે? મશીન ઓછું થાય છે એટલે બેંક બાય બેંક કેટલા રૂપિયા? 42,750। ડન? ક્લિયર? અહીંયા સુધી હવે કોઈ બેલેન્સ બચશે નહીં, સમ ખતમ। લાસ્ટ સમ, Sudhanshu Limited one machine for 22,000 on 1/4/2012, 22,200, installation expense 1,800, current total 24,000। okay, second machine 1/10/2013, 20,400 plus 1,200 rupees expense 21600। okay,
every year company provides depreciation at 10% under RBM method, 10% RBM method. 31st 3, first machine was sold at 20% loss. First machine sold at 20% loss. Clear? And from the following I have prepared this. चलो ठीक है. 1/4/2012, 31st 3/2013, 31st 3/2014, 31st 3/2015. આ હતું 24,000 નું, એના ઉપર 10%. હવે જો તમારા મગજમાં છે ને એક એવું હોય છે, આ દરેક સમ ટેક્સ્ટબુક વાળાની ભૂલ છે કે બધામાં 10% જ આપેલું છે. ટેક્સ્ટબુક વાળાએ અમુક જગ્યાએ 5% આપવું જોતું હતું, અમુક વાર 7% આપવું જોતું, તો શું થાય, મગજ રીવાર થાય. નહીં તો લોકોના મગજમાં કેવું, જે એમાઉન્ટ હોય ને 10% કરતા. ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી વાંચવાનો. આપણી પાસે બધા ક્વેશ્ચન એવા છે જેની અંદર શું થાય છે, 10% થાય છે. ક્લિયર? એન્ડ ચલો 24,000 ના કરો, 2400 કરો માઇનસ 21,600. આપણે આ વેચ્યું હતું ક્યારે? ફર્સ્ટ મશીન 31st 3 છે. ફરીથી હવે કરો 21,600 ના 2160 કેટલું આવે છે? 19,440. 1944 17,496. ઓકે, ડન. અહીંયા સુધી કોઈ કઈ ડાઉટ છે? પાક્કું? ઓકે. નાઉ એ દિવસે આપણે 20% લોસ ઉપર વેચી કાઢ્યું, તો આપણે આને અહીંયા લઈ લો 17,496 ને, એના ઉપર 20% લોસ. પોઈન્ટમાં આન્સર આવશે કદાચ. હા, કેટલો? 3499. તો આપણે 3499 રાખી દઈએ. કરો માઇનસ 1399.6 નહીં 7 થશે. હવે એકને આપણે ઘટાડ્યું તો બીજું વધી જાય ને સામસામ. કોઈ દિવસ એકાઉન્ટિંગની અંદર પોઈન્ટ આવશે નહીં. હવે આઈધર તમે 3500 ઉપર લખો તો નીચે લખવું પડશે 13,996. ક્લિયર? અને કોઈ પણ એક જગ્યાએ સર ક્યાં વધારવું જોઈએ, તો મેથેમેટિકલી જ્યાં 0.5 થી વધારે હોય ત્યાં વધારી દો તો વધારે સારું. પણ સર હું અહીંયા 3499 ની જગ્યાએ 3500 લખું તો ગુડ, માર્ક્સ કપાશે નહીં. ક્લિયર? તો જે રીતે હવે આ આપણું જશે PNL માં, આ જશે બેંકમાં. હવે આપણું 11013 એટલે અહીંયા આવે, અહીંયા આવે 11013 કે છેલ્લે આવે? વચ્ચે વાળામાં આવે 11013. હવે આ તો આપણા મોટા મોટા દ્વાર છે જ્યાં અટકું, એટલે અહીંયાથી બ્રિજ બનીને અહીંયા તો આવવું જ પડશે. કેટલાનું હતું? 21,600. આનું ડેપ્રિસિએશન ફાઇન કરો. ડેપ્રી 21,600 ના 10% 2160. પણ આ તો 12 મહિના, 12 મહિનાના 2160 તો 6 મહિનાના 1080. ચલો આ મળી ગયું. હવે 21,600 માંથી 1080 કાઢો. શું થયું મને પૂછી લેજો. અટકો કોઈ જગ્યાએ? બંને શું કહે છે? 1080 કઈ થયા? 12 મંથ્સના 2160 તો 6 મંથ્સના કેટલા? તો મેં ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કર્યો, 6 × 2160 ડિવાઇડ બાય 12 કરેલું. ડન? હા, કેટલું આવે છે? 520. ઓકે, 20520. હવે જે આખું વર્ષ વાપર્યું છે, તો હવે તો આખા વર્ષનું આવે 2052. 20 હવે 20520 માંથી 2052 કાઢીએ 18468. ચલો ઠીક છે. હવે સૌથી પહેલા કોનો વારો આવ્યો? તમારો આવ્યો. હા, કઈ ડેટ? 1/4/12. શું કરશું? ટુ બેંક ટુ કેશ. હા, 22,200 અને 1,800. ચલો બાજુમાં 31st 3/2013 બાય ડેપ્રી. હા, કેટલા રૂપિયા? 2,400. બેલેન્સની અમાઉન્ટ બોલો. 21600. ઓકે, એની બાજુમાં ડેટ ના, ડેટ 1/4/13. બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ 21,600. ક્લિયર? ડન. 21,600. અહીંયા સુધી કોણ કઈ ડાઉટ છે? પાક્કું? હેપી? ચલો એના પછી પતી ગયું ને? હા, તમારો વારો.
ચલો આપણે અહીંયા પતી ગયું. હવે આ દિવસે આવ્યા 110 આવ્યું પહેલા તો બેલેન્સ નહીં આવે. વિચાર કર શું થયું તું? 16 નતું કર્યું, 9 લીધું તું. હા 2 બેંક અને 2 કેશ. કેટલું બેંકમાં કેટલું કેશમાં? ના 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 ના, એ તો ટોટલ એમાઉન્ટ છે. અરે અહીંયા કોઈ ચીજ જોવી પડશે. 20400 ચલો એની બાજુમાં ડેપ્રિસિએશન 31/3/2014 ડેપ્રી. હા બોલો. એમાં બે ગ્રાફ પેલા ભેગા થાય છે. 2160 1080 કરો 3240. ઓકે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. હા હવે તારે ફાઇન્ડ કરવું પડશે ટોટલ કરીને. આમાં નહીં થાય બધા. કર ટોટલ બધા કરો ટોટલ. 43200 ગેપ 3960. હવે આનું ટોટલ જોવું હોય ને તો તમને મળી જાય ખરું. આ બંનેનું ટોટલ જે છે ને એના જેટલું હશે. 19440 પ્લસ 20520. બરાબર. એટલે આ વર્ષનું ટોટલ આ બંને એસેટ જેટલું થયું. ચલો સમજવા માટે પાછળ આપણે બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ લખી કાઢીએ. 1/4/2014 બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ 39960. હવે તું આ દિવસ ઉપર આવી ગઈ છે 31/3/15. બોલો શું લખું? બાય ડેપ્રી. બે પેલા તાર ભેગા થાય છે. હા બોલો કયા બે તાર? 1944. હા 1944 અને 2052. ઓકે કરો 3996. ઓકે એની બાજુમાં એ દિવસે બીજું કઈ થાય છે? હા તો શું કરું? હા 3499. હા બેંકમાં કેટલા રૂપિયા? 13997. એની પાછળ હવે ભાઈ બેલેન્સ કેટલું બાકી રહેશે? હવે ટોટલ કરીને ગેપ ફાઇન્ડ કરી શકીશ તું? મને તું જ કહીશ, બીજા કોઈ ટોટલ નહીં કે. મને આ સાઈડનું ટોટલ જો ખબર પડી ગઈ છે 39960 છે. 39960 गैप खाली फाइंड कर सकीस. हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट. अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं. तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं. और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं. आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा. आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं. पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए. एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे. ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं. और इको बीए में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे. और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे. तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8000 का है, जो आपको 6500 में पूरा मिल जाएगा. मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी. तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है. ठीक है, तो
तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स, ठीक है, जो आपको चारों चार सब्जेक्ट अकाउंट, सेट्स, इको, भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है, ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। 160 का 39960 बोल तो जा कैलकुलेटर में, तुझे मोटेથી કરે નહીં, બોલ તું જે બોલતો હે 39960 પછી શું કહીશ, કયું બટન દબાઈશ, માઇનસ કેટલા વેલ્યુ 13997 કર 13997 ફરી પછી પછી માઈનસ 3499 કર 399 કેટલું આવ્યું 5400 आ गया हमारा ये वाला बैलेंस, क्लियर, डन। तो यही चीज थी। इसके अंदर ऐसा होता है नॉर्मली, टेक्निकली ऐसा होता है, ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ना, आप जब सम खत्म कर रहे हो ना तो आपको एक साल आगे का लिख के रखना पड़ता है। 1415 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 18468, क्लियर है। ये आपको एक साल आगे का क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। अगर आपके स्कूल टीचर बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं बोल रहे तो छोड़ देना। पर नॉर्मली ये पैटर्न, ये पॉलिसी होती है कि आप जब जिस साल का खत्म करो उसके एक साल आगे का आपको क्या लिखना है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड लिख के जाना है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे हमारे पास 2 सम्स है, जिसके अंदर मैंने लिखा है एक्स्ट्रा सम्स फॉर सिलेक्टेड स्कूल्स ओनली। हाँ बना सिलेक्ट, ये जो है ना वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सम्स है, जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट भी है। कैश फ्लो वाले चैप्टर सीबीएसई के अंदर आते हैं, जो क्योंकि हमारा इतना बड़ा कैश फ्लो का 12th में चैप्टर आता नहीं, तो उसके अंदर हम लोग को उतनी दिक्कतें नहीं आती, तो हम लोग उसी टाइम पे समझ के कर भी लेंगे। ये सम्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वाले स्किप करवा देते हैं, तो मैंने अभी के लिए क्या किया, स्किप के मोड पे रखा हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादातर। और जिस स्कूल में चल रहा है उनको अलग से मैं करवा दूंगा, क्लियर है। मोस्टली ये लोग इतने ही चैप्टर्स देंगे। बहुत सारे स्कूल्स ने 11th के अंदर ऐसा पैटर्न भी स्टार्ट कर दिया है, जो 12th के अंदर क्या आ जाता है, कुछ चैप्टर्स निकल जाते हैं और के अंदर। स्टेट्स में कोई भी नहीं निकलता, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत चाहिए, अगर आपको सही में किधर आगे जाना हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भयंकर चाहिए, पर चैप्टर्स निकल जाते हैं वहां पर। कई बार 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी चैप्टर्स को कैंसल आउट किया गया है। तो कोई स्कूल एवी હતી જે મને બોપલમાં કોઈ એવું કીધું કે અમને તો એવું કીધું છે કે તમને જો બીઆરએસ આવડતું હશે ને તો આ ચેપ્ટર નહીં આવડે ને તો ચાલશે। કયું ચેપ્ટર ભૂલી ગયો છું, પણ એવી રીતે કોઈ કીધું બીઆરએસ ની સામે એક ચેપ્ટર છે ना, वो स्कूल के पेपर स्कीम पे अवेलेबल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मेरी एडवाइस ये है कि आप वो पेपर स्कीम को है ना इतना दिल पे लगा के मत कर लेना। हाँ एग्जाम कल अगर स्कूल की एग्जाम है उसमें देख लो कि आपको चैप्टर कौन सा करना है, पर उसे पकड़ के आप चैप्टर को छोड़ मत देना। ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के अंदर फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आएगा, रिड्यूसिंग और स्ट्रेट लाइन मेथड। और चलो 12th को भी मानो, 11th में જ આવતું હતું જો યાદ હોય તો, फाइनल अकाउंट्स में अमुक वार में डेप्रिसिएशन डायरेक्ट फाइंड का, अमुक में स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट प्राइस જોવા જતા। तो ये सारे चैप्टर्स बेस बना रहे हैं, तो स्कूल वाले बोले छोड़ देंगे, छोड़ देवानुं, હું ભણાવી દઉં છું ને એટલે જોઈ લેવાનું, ક્લિયર है। એટલે વધુ પડતું એના ઉપર ટેન્શન લેવાનું નહીં, ડન। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू चैप्टर नंबर 2। सो नाउ 1 2 5 बराबर 3 खत्म, तो 1 2 3 खत्म, 5 खत्म। 4 चैप्टर के लिए मुझे लगेंगे 4 या 5 लेक्चर, क्लियर है। 4 या 5 लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 खत्म। 6 और 7 के लिए मुझे एक लेक्चर ही चाहिए होगा, क्योंकि वो प्योरा थियरी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर वहां पे टिक मार्क करवा देंगे कि આટલું આટલું વાંચી જવાનું છે ને આટલું જ કરવાનું છે, એ કરાવી જ દેશે ત્યાં સુધી। 8 चैप्टर टिक मार्क ही होगा, 8 चैप्टर हिस्ट्री है हमारी, तो हम लोग चर्चा करेंगे,
ગ્લેડન સ્કૂલ વાલે જો યાદ કરે, પણ આપણે એકવાર હિસ્ટ્રી જોઈ લઈશું કે વર્ષો પહેલા કઈ છે, જેમ કે બ્રિટિશર્સ આવ્યા હતા, બેટલ ઓફ પ્લાસી થયું હતું, ખાલી મગજમાં આવવું જોઈએ કે આપણો ઇતિહાસ આવો હતો એના માટે. ચાલો.